ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ بات چیت سے حل نکل آیا تو یہ بہت اچھا ہوگا، ورنہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، فوجی کارروائی سے متعلق سوال پر جواب دینے سے انکار۔ کہا ہم نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں، روس یوکرین جنگ رکوانے پر کام کر رہے ہیں، اچھی خبر کی توقع ہے۔ کارروائی کے بعد وینزویلا کی قیادت کا رویہ تبدیل ہوا، امریکی سرحدیں محفوظ بنا دی، اب کوئی غیر قانونی طریقے سے نہیں آ رہا۔ میرا ایپسن اسکینڈل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امریکی صنعتوں کے لیے اہم معدنیات کا اسٹریٹجک ذخیرہ قائم کرنے کا اعلان، امریکی بینک $12 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار، امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات جمعے کو ترکیہ میں ہوں گے۔ امریکی اور ایرانی حکام نے مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات استنبول میں ہوگی۔ سعودی عرب، UAE، قطر، مصر اور دیگر بھی شامل ہوں گے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران یورینیم افزودگی پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ فوجی اثاثوں کو ایران سے دور منتقل کرے۔ بال اب امریکی صدر کی کورٹ میں ہے۔ جو جغرافی ہے بلوچستان کی، وہ پاکستان کا اوور 40% رقبہ جو ہے بلوچستان میں، اور اس میں 35 کلومیٹر پہ ایک شخص رہتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا کسی آبادی والے شہر یا آبادی والے خطے سے کہیں زیادہ جو ہے مشکل ہے، اور وہاں پہ میسو قسم کی فورسز کی ڈپلائمنٹ کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ بلوچستان میں بڑی تعداد میں فورسز تعینات کرنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی میں بھارت ملوث، دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر موجود عناصر کا تعاون حاصل ہے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، وزیر دفاع نے کہا دہشت گردوں کے سربراہ افغانستان میں ہیں، وہاں کے حکمران بھی ملوث ہیں۔ بلوچستان میں تیل کی اسمگلنگ سے دہشت گرد روزانہ $4 ارب کما رہے ہیں۔ ایران سے $40 لیٹر تیل لے کر کراچی میں $200 لیٹر بیچ رہے ہیں۔ ایرانی تیل اسمگلنگ سے منافع کمانے والے احتجاج کے پیچھے ہے۔ جرائم پیشہ عناصر دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتے ہیں۔ بلوچستان میں 177 دہشت گرد مارے گئے، یہ ویک اپ کال ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کا مسنگ پرسنز میں نام ہے۔ سرداری نظام نے بلوچستان کے وسائل کو لوٹا، جتنے ایئرپورٹ وہاں ہیں کسی صوبے میں نہیں۔ ان میں سے جو آپریشنل نہیں انہیں فعال کر رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں، وفاق سمیت ہر صوبے میں کرپشن ہے۔ حکومتوں نے بیوروکریسی سے مل کر بلوچستان میں وسائل کی درست تقسیم نہیں کی، وہاں سرداروں، بیوروکریسی اور مافیا کا گٹھ جوڑ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی پر حکومت اور اپوزیشن یکسبات، بلوچستان پر حملے پورے پاکستان پر حملہ ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان آخری دہشت گرد کے خاتمے تک لڑے گا۔ ہم شہداء کے ساتھ ہیں، کسی اگر مگر کے بغیر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دہشت گرد جہاں بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ پاکستان اور لیبیا کی مسلح افواج کے درمیان مسلسل روابط اور تعاون کی اہمیت پر زور۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم حفتر کا GHQ کا دورہ، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سیداسی منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، سیکیورٹی کی صورتحال اور پیشہ ورانہ تعاون پر توجہ مرکوز رہی۔ فیلڈ مارشل کا لیبیا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، لیبیا میں امن استحکام اور ادارہ جاتی ترقی کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت پر زور۔ معزز مہمان کی GHQ میں یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، نائب کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ بھی ہمراہ تھے۔ نور خان ایئر بیس پر فیلڈ مارشل سیداسی منیر نے فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم کا استقبال کیا۔ لیبیا کے نائب کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات، باہمی دلچسپی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر گفتگو۔ ایئر چیف کا لیبیا کی فضائیہ کے ساتھ پیشہ ورانہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ سیکرٹری جنرل اسلامی انسداد دہشت گردی اتحاد کا GHQ کا دورہ، میجر جنرل محمد بن
सईद अल मकादी की फील्ड मार्शल सिद्दीक मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई में सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। फरीकैन का मुश्तरका हिकमत अमली, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के आज़म का इजहार, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जदोजहद जारी रखने के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल का आलम इस्लाम में इस्तेहकाम के फरोग और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इस्लामिक मिलिट्री कलेक्शन के किरदार को खिराज तहसीन। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मकादी की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की नुमाया खिदमत और कुर्बानियों का एतराफ़। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाक फौज की पेशा सलाहियतों की तारीफ, खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के लिए इदारा जाती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ताउन नागुज़ीर करार। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की मुलाकात। KPK के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेगी। वफाकी हुकूमत KPK के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशा है। अवामी खिदमत के लिए वफाक और सूबों के दरमियान करीबी रवाबित और मौसर राब्ताकारी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं हुई। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है, और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। पानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात। वज़ीर आज़म के साथ बानी PTI से मुलाकात के मुतालिक कोई बात नहीं हुई। KPK के मसाइल और दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का कहना है, ज़म इस्लाम में अब तक KP हुकूमत 26 अरब रुपए लगा चुकी है। NFC और फंडिंग से मुतालिक तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ के सामने रखी। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल समेत दीगर को हिदायत जारी कर दी है। हमने बलूचिस्तान वाक़े पर वज़ीर आज़म से ज़हार तासीर किया। बाहैसियत पाकिस्तानी हम सबको दहशतगर्दी की मसम्मत करनी चाहिए। शहबाज शरीफ से 1-2 मीटिंग और भी होंगी। राव अब्दुल करीम IG पंजाब तैनात। वफाकी कबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात किए जाने का इम्कान। राव अब्दुल करीम एडिशनल IT स्पेशल ब्रांच पंजाब तैनात थे। ताल्लुक पंजाब पुलिस के 24वें कॉमन से है। राव अब्दुल करीम ने 1996 में बतौर ASP पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। राव अब्दुल करीम DPO जंग, DPO मियांवाली और DPO कसूर तैनात रह चुके हैं। RPO गुजरावाला के ओहदे पर भी तैनात रह चुके। राव अब्दुल करीम बतौर एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलतों का जायजा लिया। लाहौर में इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। रोजाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफिद हो रहे हैं। पंजाब के अवाम को सहूलतों की फ्राहमी के लिए कोशा है। इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। बस स्टॉप की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बसों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बसों में सबसे पहले खवातीन को जगह देनी चाहिए। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहाती एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का अजय बंगा के पहले सरकारी दौरे का खैर मकदम। तवील मुद्दती शराकतदारी और 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जामे और मुल्की ज़रूरियात हैं। हम आहंग इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राई कारोबार, तवानाई, डिजिटल तरक्की, मालियाती इस्लाहात और निजी सरमायाकारी पर
खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अजय बंगा की हुकूमती इस्लाहात की तारीफ, वन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तहत ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार, तरक्याती हदाफ के हसूल के लिए निजी वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर जोर। भाटी गेट वाकया मैनहोल में गिरने वाली मां बेटी की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मां बेटी के सर पर जख्म के निशानात पाए गए। खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। भाटी गेट के करीब मैनहोल में गिर कर मां बेटी के जाँ भाग होने का केस। एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिम प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने जाहिद अब्बास की अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर कर ली। कराची में माड़ीपुर रोड पर शहरियों का डॉग्स पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की हिरासत में तशद्दुद से अब्दुल वासिन नामी शख्स जाँ बहक हुआ। मुजाहिरीन का इल्जाम, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा। पुलिस के मुताबिक अब्दुल वासिन नामी मुल्जिम सिविल अस्पताल में दौरान इलाज हलाक हुआ। मुल्जिम को 27 लाख रुपए की चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था। कोई और इरादा नहीं, सिर्फ महकमा सकाफत बसंत की तकरीब का एहतमाम करेगा। दहली गेट स्कूल के पास 7 फरवरी को बसंत से मुतालिक एहतमाम होगा। हुकूमती सतह पर इसके अलावा कोई और तकरीब न होगी। वर्ल्ड सिटी हुकाम के मुताबिक शाही कला और अंदरून हवेली में होने वाली तकरीबात की तैयारियां रोक दी गई हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का कोई प्लान फाइनल नहीं। बसंत की इजाज़त सिर्फ आवाम को दी गई। मरियम नवाज ने 25 साल बाद लोगों को बसंत जैसा खूबसूरत त्यौहार मनाने का मौका फराहम किया। पंजाब की सकाफत की बहाली का क्रेडिट 100% वज़ीर आला को जाता है। पंजाब काबीना ने लाहौर के इलाका मजीद 4 अजला में पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाज़त दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान शामिल। रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ लाहौर में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स या सेलर्स को पतंगे और ड्रोन फरोख्त कर सकेंगे। बरतानिया का ईरान की शख्सियात और इदारों पर नई पाबंदियों का ऐलान। बरतानवी हुकाम के मुताबिक पाबंदियां इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने पर लगाई गईं। मुतासरा अफराद के असासे मुंजमद और सफरी पाबंदियां आयद होंगी।